Welcome once again. And this particular interaction which I had with Manoj, who recently got selected into IUCL, is really very inspirational. Why? Because I think he's one of the last candidates who got interview call from his category. He's electrical engineer with 400 plus all India rank, and marks are written marks. If you see his gate written marks, they are just the cutoff of EWS category. So he could manage to convert. Not only get he got interview call, but he could convert that into selection. When students got called for interview, those students who were having low gate score, especially less than 300 all India rank and all, they discussed with us and they said कि sir call तो आ गया interview का, लेकिन can we convert it? I mean हमारा gate score बहुत कम है, तो should we prepare or not? This interaction is the answer to their query. Agar if you are the last candidate to get interview call, even then you may get selected. This is the video you should watch for that. तो मनोज का आप पूरा इंटरेक्शन सुनना, बहुत इंस्पिरेशनल है, बहुत पॉजिटिव बच्चा है ये। और मनोज ने बताया है कि वो कैसे सिलेक्ट हुआ और कैसे उसका स्ट्रगल था। एंड दो स्टूडेंट्स जिनको इंटरव्यू कॉल आ जाता है, उनको किस तरीके से रिटर्न के बारे में ना बॉदर करके इंटरव्यू पे फोकस करना चाहिए। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। So be motivated, keep preparing, and if you get into call, just try to convert it. All the best, and listen to this interaction thoroughly. Okay, so Manoj, first of all, thank you for giving your precious time and coming here for interaction, and congratulations for getting selected in prestigious IOCL. Thank you so much, sir. Okay, great. So Manoj, you are electrical engineer, and Yes, sir. your all India rank in GATE was 438. You are EWS. So you have managed to get into prestigious IOCL. Many students with your rank, they thought that it is almost difficult to get into IOCL, but you managed to get into that. It's quite motivational and inspirational to see that particular thing. Now let me request you to Manoj, tell us something about you first. In that, please tell from which part of India you are and which college did you graduate. You are electrical engineer, so how many times you wrote GATE exam and what was the journey in GATE. And then we come over to IOCL, and then in the latter part I will ask you about IOCL experience also. So first about you. Okay, sir. Sir, I am from Delhi, Mhm. and sir, I did my graduation in electrical engineering from Gautam Buddha University, Greater Noida, in Okay. 2018. Mhm. And sir, the first time I appeared for GATE was in 2018, Okay. 2018. Mhm. And sir, during that time, means I just qualified GATE with Mhm. 10,000 rank. Mhm. So sir, after that, sir, I just kept in mind that I need, I need to go for GATE because I want a PSU, because uh, uh, my uncle is also working in one of the PSU, that is GAIL India Limited. So Mhm. from the childhood only, I just dreamed to be working under in a PSU. So Mhm. in 2019, sir, I prepared, but since syllabus was not completed, so Mhm. I just got 69 marks in that time, and Okay. rank was 3100. Okay. And then again, just the next year also I appeared for GATE 2020, Mhm. and in GATE 2020 my rank was again 2800. Mhm. So no PSU, nothing, no chance. Mhm. And then sir, in 2021 I improved a lot, and Mhm. I work on my weaknesses where I just lag in 2020. Mhm. And this time I got 438 rank, Mhm. and with marks was 66.33 overall. Mhm. Mhm. Okay. So Manoj, it was quite inspirational. No? 2018 you started, and with the 10,000 plus rank, and then 19 May you improved. I'll say hugely, that 3,100 you could Yes, get, sir. and then 2020 was not much improvement, but you persisted, and 2021 was the year where you really got a good score. Yes, sir. And as the saying goes, fortune favors the brave. So Yes, sir. with 438, sometime we may think that electrical may we get nothing. Eventually, you landed up in getting the best option through GATE, that is IOCL, one of the best public sector you can get through GATE. So Yes, that sir. was really quite satisfying to see that, and inspirational at the same time. Now, Manoj, my question to you is,
when you got 300 3100 rank or 2800 rank, you could have got very good MTech course also. Did you try in MTech with this course? No, sir. Since my course which I did in as a graduation was integrated BTech plus MTech. Okay. So already I have done my masters from my Okay. Okay. Gautam Buddha University. So Mhm. I think I don't need to go for, because at 2800 and 3100 rank, there is no chance of getting a top IITs, Mhm. masters from top IITs. Mhm. So I didn't go for Apply. those Mhm. options. ओके मनोज, एक सबसे बड़ा डिफिकल्ट फेज ये होता है कि व्हेन यू आर कंटिन्यूअसली राइटिंग, अभी देखने में तो लगता है कि साहब 2018 में ये हुआ, 19 में हुआ, 20 में ये हुआ, बट इट इज 4 years, you know, and there is a lot of mental stress, mental pressure, and you know, from peers, from other side relatives and all. So Yes, sir. how did you manage these couple of years? How were you maintaining your rhythm and motivation for preparation? So for motivation was कि सर जॉब तो सर PSU चाहिए, Okay. कि फिर सर इसरो में भी फॉर्म भरा मैंने, जैसे 2019 में इसरो आया था सर, इलेक्ट्रिकल Okay. के लिए बेसिकली इसरो में भी सीट्स बड़ी कम होती हैं. Okay. तो इन इसरो सर द जस्ट बिकॉज ऑफ वन क्वेश्चन आई वाज नॉट क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू. And then sir 2020 and 2021 same happens with me in BARC also. Right, recently BARC's interviews are going on. In BARC also I was not shortlisted just because of 5 marks. Means, Okay. Mhm. overall I did well. I thought Mhm. this time I will be appearing for BARC interview, but unfortunately I was not there in their list. Mhm. So sir, mainly I have seen failures, Mhm. close failures, because in 2019 also in sir I appeared for UPPCL, Mhm. where I got 105 out of 120. अच्छा. That is around 80, 81, 82% marks. Yes, हाँ. And at this marks also I was not shortlisted for interview in UPPCL. Mhm. So you know, something is said कि जो भी कुछ आपके भाग्य में लिखा है वो आज वो नहीं तो मिलेगा. कल मिलेगा ही मिलेगा. मिलेगा, पक्का Sir, मिलेगा, I और just उसी टाइम पे मिलेगा. yes sir. हम्म. And since 2021 sir, क्वारा पे पढ़ा, बच्चों से पूछा, सीनियर से पूछा, so they used to say कि 438 रैंक पे आपको IITs तो मिल जाएंगी, लेकिन PSUs के बड़े कम चांसेस है. और यही एक होप था सर कि ठीक है, जब मुझे चांस मिलेगा आई विल गिव माय बेस्ट. एंड सर इंटरव्यू भी जब मैंने IOCL का दिया था, तो माय इंटरव्यूअर्स वाज टू मच हैप्पी. मीन्स उन्हें खुशी थी कि हाँ हम उन ऐसे बच्चे का इंटरव्यू ले रहे हैं जो कि सही में वो उस फील्ड के लिए है. तो ओवरऑल दे दैट टाइम ओनली दे कांग्रेचुलेटेड मी. सो बट इन द बैक ऑफ द माइंड सर, दिमाग में ये था कि 438 सर, और सर 85% वेटेज है. गेट मार्क्स लेंगे. तो सर वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस दिमाग में चलते रहे सर, कि भाई ऐसा भी हो सकता है, हाँ, क्योंकि हाँ. भी अच्छा ज्यादा परफॉर्म किया होगा. फिर लगा, फिर रिजल्ट आया तो सर अलग ही खुशी थी सर. चलो, बहुत अच्छा. एक्चुअली मनोज, तुमने दो जगह फाइट मारी. एक तो खैर अपना स्कोर जो तुम लाए और तैयारी किया, वो तो एक मेहनत आप कर ही रहे थे. एक आप अपने माइंड से भी स्ट्रगल कर रहे थे कि इस रैंक पे आपको हर कोई यही बोल रहा होगा, और खुद को भी आप यही बोल रहे होंगे कि शायद मेरे चांस कम हैं. और ऐसे ऐसे सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म करना, जबकि आपको लगता है कि चांस कम हो, वो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है, इंस्पिरेशनल चीज है. और ये एक मैसेज भी है उन सारे स्टूडेंट्स को जिनको जो लगता है कि नहीं, सब नहीं हो पाएगा. तो लाइफ अपॉर्चुनिटीज देती है. अगर लाइफ आपको कई बार 5 नंबर से रोक रही है, तो कई बार आपके कम स्कोर पे सिलेक्शन भी दिलवाती है. सो लाइफ का दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ के जैसा आपने बताया, भाग्य में जब मिलेगा, जब टाइम आएगा तो मिल जाएगा. जब टाइम आएगा तो आपका इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा, और पैनल भी आपको अच्छा मिलेगा, अप्रिशिएट करेगा, और सब कुछ ठीक होता जाएगा. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, एंड दिस इज समथिंग विच ऑल ऑफ अस आर टू लर्न, कि मेहनत करते जाओ, जब मिलना होगा तो मिल जाएगा. दैट इज ऑल वी हैव टू डू इट. अब मनोज, आई कम टू सेकंड पार्ट ऑफ आवर इंटरेक्शन, एंड दैट वाज रिलेटेड टू दिस ओनली, कि आपका जो ये आपका 438 रैंक था, इस पे चांसेस बहुत कम थे कि सिलेक्शन वगैरह होता है. और जैसा आपने बताया कि मैं भी यही सोच रहा था कि पता नहीं इसका क्या बनेगा, कैसे आगे प्रोसीड होगी चीज. तो आपका जो आगे चला IOCL में, व्हाट आई नो इज GD था, JT था और इंटरव्यू था.
आप अपना जरा एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपका जीडी में क्या था, जीटी क्योंकि अभी एचपीसीएल का भी ग्रुप टास्क चल रहा है, तो ग्रुप टास्क में आपका क्या टॉपिक उन्होंने दिया था और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और फिर इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना क्योंकि वो काफी सबके लिए इंस्पिरेशनल रहेगा। ओके सर, सर स्टार्टिंग फ्रॉम द जीडी, सर सबसे पहले तो सर आईओसीएल में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद वो आपको टैग देते हैं कि नंबर, वो सीरियल नंबर होता है, उसके हिसाब से आपको जीडी और जीटी के लिए भेजा जाता है। तो सर जीडी में मेरा टॉपिक था सर कोविड रिलेटेड, क्योंकि रिसेंटली 2020 और 2021 में कोविड का था। तो इसमें इन्होंने पूछा था कि कोविड कहाँ, मतलब सबसे ज्यादा अर्बन एरिया में फैला है, वो किस वजह से फैला है और उनका रीजन क्या था। तो हमारा ग्रुप डिस्कशन इस पे हुआ। फिर सर ग्रुप टास्क में था सर जो एल्डर लोग होते हैं, जो ज्यादा 60+ हो जाते हैं, वो मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं एक टाइम के बाद। तो आप एज अ ग्रुप लीडर, ग्रुप टास्क था सर हमें कि एक सोसाइटी के हेड हैं और आप ये बाकी आपके मेंबर्स होंगे और इनको कुछ सजेशन दीजिए, सजेस्टिव पॉइंट्स दीजिए कि ताकि वो जो 60+ पीपल हैं उनके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके। सर ये हमारा जीटी था। सर ओवरऑल जीटी और जीडी का मुझे जो लगता है सर, वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे जज नहीं होता है सर, वो ग्रुप पे ही होता है कि हमारा ग्रुप किस तरह का पॉइंट जनरेट करता है। और सिमिलरली सर इन ग्रुप टास्क ऑल्सो कि सर हम किस तरह के पॉइंट्स पे कंक्लूजन निकालते हैं, जो हमारा कंक्लूजन होगा वो सर वो किस टाइप का है। और उसके बाद सर हमारा लंच हुआ। लंच के बाद सर मेरा इंटरव्यू लंच के बाद हुआ था, अराउंड 4 o'clock मेरा इंटरव्यू था। और इंटरव्यू में सर स्टार्टिंग में उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा, और सर मेनली बिकॉज आई एम 2018 पास आउट, सो दे आस्क मी व्हाई from the 2018 onwards you didn't choose IT jobs, कि IT क्यों नहीं लिया। और सर ओवरऑल मेरी परसेंटाइल और CGPA अच्छी थी, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से था, तो उन्होंने ये भी पूछा कि आपने प्लेसमेंट क्यों नहीं लिया। तो वो सब सारी चीजें बताई सर कि प्लेसमेंट्स आईटी, क्योंकि सर हम आईआईटी से तो है नहीं कि हमें 21 अच्छे पैकेज सीटीसी मिलेंगे। तो सर मैंने बताया कि सर अगर मुझे यही जॉब चाहिए तो सर उतना ही स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक पहुँचूंगा। फिर बाद में फिर मुझे बैंक पीओ और ये सारी एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट इन द फील्ड वेयर आई एम स्ट्रांग। और तो उन्होंने बोला कि पूछा कि भाई इट्स टेक 3 years टू गेट अ गुड रैंक। देन आई सेड कि सर गेटिंग अ गुड CGPA इन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स या इंस्टीट्यूट एग्जाम्स इज डिफरेंट, and in case of competitive exams like GATE, where one question can cost you a very various rank, means you are back from the 1000 rank or 2000 rank. So sir it's not like I was not good in 2020 or yeah 2019, but just because of getting a wrong question, 1 or 2 wrong questions, my rank was like 3100 and so on. तो फिर सर इसके बाद इन्होंने मेरी हॉबीज पूछी, हॉबीज क्या है आपकी। तो सर मैंने अपने हॉबीज में मेंशन किया हुआ था जो उन्होंने DOF भरवाया था सर, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो था सर। तो उसमें मैंने फील किया था कि आई यूज टू टेक इंटरेस्ट इन करंट वर्ल्ड अफेयर्स एंड ऑल। तो सो दे आस्क मी कि फ्यू टॉपिक्स रिलेटेड टू वर्ल्ड अफेयर्स। तो सर मैंने बताया उस टाइम पे जैसे अफगानिस्तान क्राइसिस हुआ था और बाकी पाकिस्तान एंड ऑल, so they were quite taking interest in it ki, okay, tell me more and tell me more what your perspective related to Afghanistan taking over the government in Afghanistan. Do you think this is justified? Do you think ki Americans which withdraw their forces from Afghanistan, they are justified? So on, they are taking interest. And then one of the interviewer asked me about solar, means my final year thesis was based on solar. So they started taking interest in electric vehicles, where they asked me कि okay कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में किस टाइप की बैटरी यूज होती है। ओके, सो इंडिया कहाँ प्रोग्रेस कर रहा है किस सेक्टर में कहाँ है। तो सम देयर, बिकॉज आई यूज टू टेक इंटरेस्ट इन वर्ल्ड अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स, so I know some few of the initiatives from the government of India, so I just quote them कि these are the initiatives, and right now हम बैटरी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं।
फिर सर उसके बाद एक दो क्वेश्चन टेक्निकल से थे। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा आप क्रिकेट देखते हो? मैंने कहा सर, और सर उस टाइम पे आईपीएल चल रहे थे। तो हम्म, उन्होंने पूछा कि अच्छा लास्ट मैच उस मतलब जिस दिन मेरा था उससे एक दिन पहले का इवेंट पूछा था कि उस दिन हम्म, दो मैच थे, तो कौन पहला मैच कौन जीता और दूसरा मैच कौन जीता। हम्म, अच्छा आपके अच्छे मीन्स आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है? तो हम्म, सर मैंने बताया धोनी। फिर धोनी क्यों है, धोनी के अलावा और भी है, जैसे सचिन है, गांगुली है, द्रविड़ अच्छा, है, वाई नॉट वाई धोनी ओनली। तो हम्म, सर फिर धोनी के बारे में बताया सर कि उसका डिसीजन मेकिंग पावर सर, हम्म, और मीन्स आपने खुद से रिलेट करके बताया कि हम्म, व्हाई आई गेट मोटिवेटेड फ्रॉम धोनी। हम्म, तो फिर उन्होंने सर फिर इसी तरह से इंटरव्यू सर हम्म, इन्हीं कुछ पॉइंट्स के ऊपर सर्कुलेट चलता हुआ है। था। और 20 से 25 मिनट का इंटरव्यू था ओवरऑल। हम्म। तो मनोज, आपको क्या लगता है वो किस चीज से इम्प्रेस हुए आपके पूरे इंटरव्यू में? जैसे आपने बताया कि बाद में बहुत सेटिस्फाइड लगे और उन्होंने आपको अप्रिशिएट भी किया, तो क्या पॉइंट था ऐसा जिसको उन्होंने अप्रिशिएट किया? पर मुझे क्या लगता है सर कि एक वो जो कि मैं एक जेन्युइन आंसर उनको देता गया, क्योंकि वो हम्म, पहला पॉइंट था जहां उन्होंने मुझे मेरे पर्सनालिटी के बारे में पूछा कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ। ओके। कि आप 2018 से पास आउट हैं और आप अभी तक गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी कर रहे हैं, क्यों? हम्म, 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 क्यों नहीं आप अपने कॉलेज से प्लेसमेंट्स को लिया? हम्म, तो फिर एक दूसरा पॉइंट ये भी था सर कि जो भी मैंने मेंशन किया हुआ था उस पे, नॉट आई आई कांट से 100% कमांड ओवर इट, बट हाँ सर 90 to 95% कमांड थे मेरे। तो जो भी कुछ मेंशन किया हुआ था वो जेन्युइन थे, और एक्चुअली कंटिन्यूअस कॉन्वर्सेशन था उनके बीच में और मेरे बीच में। तो कोई बीच में इसमें 1-2 सेकेंड का पॉज नहीं था कि मैं इसको सोच रहा हूँ और वो कुछ पूछ रहे हैं और फिर वो मैं उनको डिस्गाइज कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं था जो मतलब आपने मैंने। सारा जो बात थी वो ऑनेस्टली आप बोलते चले गए और जी जी उनको लगा कि बहुत जेन्युइनली ये लड़का आंसर कर रहा है। तो आपका इंटरव्यू हिंदी में चला या इंग्लिश में चला, किस में चला? सर एक्चुअली इन इंग्लिश, इंग्लिश में इंग्लिश दिया में आपने? गया। यस, ओवरऑल इंग्लिश में था मेरा। हम्म। जीडी अच्छा जीटी और मनोज, इंग्लिश। ये जो चीज होती है ना कि 18 से लेके 21 के बीच में हमने क्या किया, स्टूडेंट बहुत डरते हैं कि सब गैप को कैसे जस्टिफाई करेंगे, बहुत डरते हैं बच्चे कि सर 18 19 20 में क्या बोलूंगा, वो क्या पूछ लेंगे। तो आपकी केस में तो ये आपने एज अ स्ट्रेंथ शो कर दिया कि साहब मैं तैयारी ही कर रहा हूँ, और उनको ऐसे रिफ्लेक्ट भी हुआ। तो ये जो गैप होता है इसको किस तरीके से स्टूडेंट इससे ना डर के वहां पे बता सकता है कि मैं तैयारी कर रहा था? सर इसमें तो सर एक अगर आपकी रैंक अच्छी है मीन्स, हम्म, मैं अपने रैंक को भी अच्छी कहूंगा, ऐसा हम्म, है, हम्म, ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम्म, अगर आपके पास सेल्फ बिलीव होना चाहिए सर, जो भी आप हम्म, कर रहे हो वो उनको पता होना चाहिए कि आप इसी की तैयारी कर रहे हो। सही है। क्योंकि क्या होता है कि सर हम मैनेजमेंट, जैसे सर मैं नीटी मुंबई के लिए भी अपीयर हुआ था इंटरव्यू के लिए। हम्म, वहां पे भी उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस किया था, हम्म, हम्म, जस्ट बिकॉज वहाँ गेट स्कोर लो था, तो सर हम्म, रैंक उतनी मेरिट वाली नहीं बन पाई थी, 200 के लगभग हम्म, लगभग रैंक बनी थी। हम्म, तो उसमें भी उन्होंने यही पूछा था कि आप क्यों 2018 से 21 तक आप तैयारी करते रहे, तो आपने क्या स्किल सीखे? तो मैंने उस समय भी उनको ये बताया था कि सर एडिशनल स्किल्स, जैसे राइट नाउ डेटा साइंस का चल रहा है, डेटा माइनिंग चल रही है, तो इस पे मैंने ओवरव्यू लिया हुआ है। मीन्स ऐसा नहीं है कि आई एम परफेक्ट इन इट, बिकॉज आई वॉज कंटिन्यूअस प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जाम्स एंड ऑल। सो बट ओवरऑल आई हैव टच विद दिस ऑल ओके। फील्ड्स ऑल्सो। तो उन्होंने फिर नीटी में रिलेटेड टू दिस टॉपिक दे टेक अवे माय इंटरव्यू इन दैट डायरेक्शन ओनली। बट इन केस ऑफ दिस मैं स्टूडेंट को ये बताऊंगा कि जो भी आप हम कर रहे हैं उनको अच्छे से कन्वे करना चाहिए। अगर हम अच्छे से कन्वे कर लेते हैं उनको, अगर हम बताते हैं, क्योंकि सम टाइम समर डे मीन्स कुछ दिन हम हमारी जगह पे वो भी थे। सही है, रियलिटी है वो तो। रियलिटी है सर, वो उस चीज को समझेंगे। ऐसा नहीं है कि हम्म। सर हाँ, बिकॉज ऐसा नहीं कि किसी और प्लेनेट से वो आए हैं, उनको पता है मेहनत करनी पड़ती है और आदमी को सर टाइम लगता है। सक्सेस गेटिंग एट फर्स्ट चांस इज सर रेयर सर, पहली बार में सक्सेस मिला बहुत रेयर होता है। सही है। और सक्सेस के लिए सर परसिवरेंस और पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अगर अगर हमारे पास इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो हम सक्सेस डिजर्व नहीं करते। दोज सही है, हु सही। यूज्ड टू से कि अरे 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं और हमारे कुछ नहीं हो रहा है, तो हम्म, समथिंग ही इज मिसिंग, और हम्म, समथिंग इज लाइक लैगिंग बिहाइंड। हम्म, कि वो या तो अपने वीक सेक्टर पे काम नहीं कर रहा है,
या तो वो कभी पेशेंस रखा ही नहीं किसी चीज के बारे में। अगर आपके पास, जस्ट लाइक मी, अगर मैं बात अपनी करूं तो मुझे शुरू से ही पीएसयू चाहिए थी। आई नेवर वांटेड अ एई जॉब और समथिंग। यूपीपीसीएल इसलिए भरता रहा कि सर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि कहीं ना कहीं तो हो जाएगा, लेकिन भाग्य में ये नहीं था। यूपीपीसीएल कभी था ही नहीं। इसरो भरा, इसरो में 5-6 नंबर से रह जाता था। बार्क भरा, बार्क में भी रह गया। तो पेशेंस था और परसिवरेंस भी थी कि ठीक है, आज नहीं तो कल तो मिल ही जाएगा। बट सर आईओसीएल मिलना, मैं कहूंगा कि एट दिस रैंक इट्स जस्ट मोटिवेटिंग सर। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन पूरी रात में नहीं सो पाया। चलो, ग्रेट ग्रेट। ऐसा बहुत अच्छा। एक्चुअली ऐसी स्टोरीज बच्चों को बहुत मोटिवेट करती हैं, क्योंकि इससे लगता है कि नहीं, होप है और हमें लगे रहना चाहिए। एक और बात मैं बताऊंगा मनोज की, क्योंकि आपका रिजल्ट नहीं आया तो बात अलग है, अदरवाइज आप में इंप्रूवमेंट चल रहा था। अगर मैं देखूं 18, 19, 20, 21 में तो रैंक भी इंप्रूव हो रहा है। और दूसरा, आपने मे भी अपने इंटरव्यू में उनको ये बताया भी होगा कि इसरो बीएआरसी वगैरह में भी आप पॉइंट पे छूट रहे हैं। तो ये उनको पता था कि ये लड़का ऑलमोस्ट तैयार है अभी, मतलब इसका लेवल आ चुका है। ये नहीं हो रहा है, वो क्वर्क ऑफ फेट है, लेकिन इसका लेवल आ चुका है। तो क्या ये चीज भी डिस्कस कर दी थी आपने कि बीएआरसी और इसरो में आपका क्या चल रहा है? हाँ सर, उन्होंने पूछा था कि आप किस मीन्स इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए। तो मैंने कहा सर ये मेरा अभी तक का फर्स्ट इंटरव्यू है। पीएसयू इंटरव्यू पहला है। उससे पहले मैंने रिटेन एग्जाम्स भी, मतलब मार्जिन से रह गया हूँ सर। लाइक इसरो, जस्ट आई टोल्ड अर्लियर कि इसरो एंड बार्क। so they said okay, so means this time you think you can convert IOCL in your favor. मैंने कहा सर आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट एंड रेस्ट आफ्टर एन आवर और समथिंग, आफ्टर 30 मिनट मुझे पता चल जाएगा सर कि मैं अपने फेवर में इंटरव्यू लिया कि नहीं लिया। अच्छा मनोज, अब ये बताओ, एक क्वेश्चन पूछूंगा कि निटी बॉम्बे के लिए आपने ट्राई किया था। अब ये बताओ कि अगर हो जाता वहां तो क्या ज्वाइन करते या नहीं करते आप? सर अगर हो जाता तो सर ट्रैक चेंज हो जाती सर। हाँ, अब वही कहते हैं ना जैसे सर, वो होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो अच्छा हुआ तुम्हारा नहीं सिलेक्शन हुआ। नहीं हुआ। अगर होता तो वो फिर तब क्या चले था कि गए। टेक्निकल छोड़नी पड़ती, सिर्फ नॉन टेक्निकल छोड़ टेक्निकल में ही गए। जाना सही पड़ता, क्योंकि सही है, सही नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों एक साथ नहीं ले जा सकते थे। लेकिन कुछ और ही किस्मत में कुछ और था और प्लान जो था, बेस्ट था। बेस्ट था चलो, सर। बहुत बहुत अच्छा लगा मनोज, बहुत अच्छा लगा, इंस्पिरेशनल। मतलब कई स्टोरीज ऐसी होती हैं जिनको सुन के आपका दिन अच्छा निकल जाता है। तो दिस इज द स्टोरी फॉर मी आल्सो टुडे, कि थैंक यू आपके सर। स्टोरीज सुन के बहुत अच्छा लगा। और आपका जो फाइटिंग स्पिरिट है और जो ओरिजिनलिटी है आपके अंदर, दैट इज रियली गुड एंड इट विल हेल्प यू इन योर करियर आल्सो। और आई एम वेरी श्योर कि जो आपकी स्टोरी अभी हम डालेंगे तो इससे बहुत सा ऐसा बच्चा होगा जो स्ट्रगलिंग फेज में है, उसको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आगे काम करने की उसको एनर्जी मिलेगी। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। ओके सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू मनोज, यू केम फॉरवर्ड एंड यू शेयर्ड योर जर्नी विद मी। थैंक्स अ लॉट। वेलकम।